Yeah, good morning, everyone. So, in the last class, we introduced the idea of the random variable and the probability distribution. Few questions were also taken, and we also considered the finding of the mean, variance, and standard deviation of a given probability distribution. In today's class, few more questions, followed by the basic idea only for the binomial distribution, though which is not in our syllabus, but that formula is very important from at least competitive point of view. So this was the last question which was given to you in your homework. A direct question along with a hint as well. We already have considered this. A class of 15 students whose ages are the following. So we just need the frequency of each age, and accordingly we calculated their probabilities. So X was from 14, 15, 16 and so on. We observed it was till last 21, the highest age given over here. And we need to calculate, say, Px is equal to 14. And 14 is coming uh, two times only, right? So that is 2 over total 15. Same way you calculate for the all other ages. So simply you need to get that probability distribution table followed by the mean, variance and SG. Another very simple question for your homework जो last class में दिया था. In a meeting, 70% of the member favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random, and if we take x is equal to 0 if he oppose and x equal to 1 if he is in favor, तो चेक इट आउट. आपके पास तो अब सब कुछ डायरेक्ट गिवन है. ये रहा x, ये रहा px. x is 0 and 1. 0 का मतलब ही अपोज्ड. अपोज कितनों ने करा था? 30%. And 1 in the favor, which is 70 by 100. That's it. So this is your probability distribution table. Now you can easily get the expected or the mean value using their standard formulas. और वेरिएंस का बस याद दिलवा देता हूं. समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस में मीन का होल स्क्वायर. चेक आउट दिस क्वेश्चन. होमवर्क के लिए कहा था आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. 3 defective bulbs are mixed with the 7 good one, right? तो probability of defective हो गया 3/10, क्योंकि 10 टोटल बल्ब हो गए थे. और नॉन डिफेक्टिव की बात कर लें, वो 7/10 हो गया. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स when a sample of 3 bulbs is drawn. तो x can be, लॉजिक है सिंपल, एक भी डिफेक्टिव नहीं आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए. That means when we need to calculate P of x is equal to 0, एक भी डिफेक्टिव ना हो, मीन्स 3 का सैंपल ड्रॉ हुआ है तो तीनों नॉन डिफेक्टिव हो जाएं. Similarly, we already seen approach for Px is equal to 1 का मतलब 1 is defective and 2 are non-defective. And do recall, डिफेक्टिव वाला सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता था एंड एज वेल एज थर्ड पोजीशन. सो यहां डिफेक्टिव 3/10, नॉन डिफेक्टिव 7/10 और इंटू 3 हो जाएगा. इज इट करेक्ट?
Is it correct? Anyone? चेक करिए, स्टार्टिंग से गलत है ये। प्लीज थिंक अबाउट दिस। कहां पर क्वेश्चन में कहा था कि ये विद रिप्लेसमेंट है? इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, it is always a case of without replacement। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप ये यहां नहीं लिखेंगे, और नॉन डिफेक्टिव आने का मतलब पहला नॉन डिफेक्टिव आए, दूसरा नॉन डिफेक्टिव आए, तीसरा नॉन डिफेक्टिव आए। सेम वे यहां पर आप सोचेंगे डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव में फर्क पड़ेगा 7/9 एंड दिस इज 6/8 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो बी वेरी अटेंटिव इफ यू आर ज्वाइनिंग द क्लास। तो प्लीज सीखने के लिए आए हैं, थोड़ा सा ध्यान से अप्रोच यहां ध्यान रखिए। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल चीज में देखो मिस्टेक हुई ना, कि हमने ये देखा ही नहीं कि ये विद है या विदाउट। अगर कुछ भी नहीं है तो विदाउट ही आप लेंगे। So please complete this in your homework now. You just need P of x is equal to 2 and Px is equal to 3. Get that table और फिर सीधा फार्मूला है मीन एंड वेरिएंस के। ऑफ कोर्स अब फिर क्लियर है, नथिंग इज रिटर्न, तो दिस इज अ केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और इन अ रैंडम ड्रॉ 3 बॉल्स, तो x कैन बी 0, 1, 2 और 3। बस इसके बाद तो फिर आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो डू इट इन योर होमवर्क। In a game, 3 coins are tossed. Head, 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 tail, head, tail, head, हेड टेल टेल, और फिर टेल हेड हेड। स्पेस देने का रीजन है वो आगे जरूरत पड़ेगी थोड़ा कुछ लिखने के लिए। और टेल टेल टेल। अ पर्सन इज पेड ₹5 इफ ही गेट्स ऑल हेड्स और ऑल टेल्स। टोटल अगर तीनों हेड आते हैं तब मिलाकर देख लो ₹5 मिले हैं। यहां अगर सारे तीनों टेल आए तब 5 मिले हैं। ईच टेल के ऊपर 5 5 5 नहीं मिले हैं। एंड ही इज सपोज्ड टू पे ₹3 इफ ही गेट्स 1 हेड और 2 हेड्स। ऑफ कोर्स इस इन होल केस इधर 1 हेड बाकियों में बचा हुआ रहा होगा या 2 हेड्स होंगे। तो इन हर केस में ही नीड टू रिटर्न, ही नीड टू पे बैक ₹3। तो माइनस हो गया, यहां पर लॉस हो रहा है उसे। सो हर एक केस में नेगेटिव हो गया ₹3। बस इसके बाद कह रहे हैं व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट टू विन। तो आप चेक कर लीजिए आपके पास क्या होने वाला है। अमाउंट तो सिर्फ इस केस में दो अमाउंट बने हैं। X, if it's the money he expected to win or lose, that can be only ₹5 or that can be negative ₹3. 5, 2 cases out of 8, 6 cases out of 8. What can he expect to win?
एक्सपेक्ट टू विन का मतलब आपको निकालना है मीन, और वो हो गया था एक्सपेक्टेड वैल्यू इज दिस विच इज 5 into 2/8 माइनस, ये प्लस में आएगा बट -3 की वजह से ये हो जाएगा, एंड दिस इज 10 - 18/8। रीजन रहा था मैंने इसको सिंप्लीफाई लोअर फॉर्म में क्यों नहीं लाया था, सॉल्व करा, आ गया -1 1। तो व्हाट डज दैट मीन, -1 आने का मतलब एक्सपेक्टेड क्या हो गया कि अगर वो इस कंडीशन के साथ गेम को खेलेगा तो चांसेस हैं कि उसको 1 रुपी का लॉस होने वाला है। तो अंडर दिस कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस लेट हिम अवॉइड प्लेइंग दिस गेम। तो वो रियल लाइफ सिचुएशन से आप इसको बिल्कुल लिंक कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपलर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं एक आने वाला है, वहां पर थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचना होगा, दैट आई विल कंसिडर। Check out this question. Three cards are drawn successively with replacement. From a well shuffled deck of 52 playing cards, X represents number of hearts he is getting. Find the mean and variance. तो हम पहले कह देते हैं find the probability distribution। तो यहां तक तो बिल्कुल आपके सिलेबस का ही रहा। तो क्लियरली X कैन बी 0 हार्ट आए, 1 आए, 2 आए या 3 आ जाए। अब ये केस क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट विल बी द सेम। 13 हार्ट्स होते हैं, 1/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन हार्ट, दैट वुड बी 3/4। और P ऑफ X इज इक्वल टू 0 का मतलब तीनों नॉन हार्ट आ जाए, मैं इसे P ऑफ H लिख देता हूं और नॉन हार्ट को N। तो X इक्वल टू 0 का मतलब तीनों नॉन हार्ट आ जाए, 3 कार्ड ड्रॉ होंगे ना। बस ये तो फिर क्विकली आइडिया लग जाता है, यहां क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है इसीलिए आई डी नॉट टू वरी, और ये सीधा 3/4 का क्यूब हो गया। Similarly, Px equal to 1, I'm sure you all can do it. एक हार्ट आए, दो नॉन हार्ट्स आ जाए, पोजीशनिंग कैन बी चेंज्ड। हार्ट सेकंड प्लेस पर आ सकता है एंड थर्ड प्लेस पे आ सकता है। हार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4, नॉन हार्ट ये आ गए, और 3 सिमिलर केसेस हैं। इफ द आइडिया इज क्लियर, बहुत जल्दी आप ये सब अब लिख सकते हैं, फॉलोड बाय x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। सो कंप्लीट दिस इन योर होमवर्क नाउ। इनफैक्ट बर्नौली ट्रायल से अगर मैं इसे लिखता हूं, विच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस जस्ट नाउ, इट विल बी लिटिल बिट मोर इजियर। उस केस में मुझे ये तीनों केसेस को सोचना ही नहीं पड़ेगा। एनसीआर का फॉर्मूला डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेगा दैट हाउ मेनी केसेस वुड बी देयर। Check out this theorem. I'm waiting
So let there be n independent trials in an experiment, and let the random variable x denote the number of successes. Let the probability of getting a success in a single trial be p. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q कह दिया. And we assume that there are only two possibilities, success or failure, because इसके अलावा भी हो सकता था. याद करिए क्वेश्चन हमने ऐसा करा था बेस थ्योरम में, wherein there was a situation of MCQ test. A child can cheat the answer, he guessed the answer, right, or he knows the answer. तो वो केसेस इस तरह के यहाँ पॉसिबल नहीं होंगे. तो देयर शुड बी ओनली सक्सेस और ईदर अ फेलियर. Then the probability of x is equal to r is given by this formula. And I'm sure आप recall कर पा रहे होंगे, this formula resembles with the binomial theorem expansion. Now there are certain conditions which should be true जब मुझे binomial distribution को apply करना है. And the conditions goes like this. First one क्या है? The experiment is performed for the finite and fixed number of times. Because it is possible कि experiment infinite हो जाए. तो उस तरह के भी cases कुछ pending है, that I will cover. Next है, each trial must give either a success or failure. Already discussed. The probability of success in each trial is the same. Probability success की same रहने का मतलब, अगर पहले वाले केस में वो 13/52 है, तो नेक्स्ट टाइम भी 13/52 होनी चाहिए, उसके बाद फिर से 13/52 होना चाहिए. And this is only possible when it is a case of with replacement. So the question with replacement वाले जो हैं, at least उन्हें हम solve कर सकते हैं using Bernoulli trials. So formula एक बार note कर लीजिए and then we'll come to the question quickly. कंडीशंस को आप इजीली जस्टिफाई कर लेंगे और डायरेक्ट बर्नौली ट्रायल लगाते हैं. नंबर यहां देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 6 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो 2 की पावर 6, 64 मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं. तो लिस्टिंग दो 64 प्रैक्टिकली वेरी वेरी चैलेंजिंग. इसीलिए अब हम यहाँ सिंपल लॉजिक लगाएंगे एंड हियर कम्स द बर्नौली ट्रायल. यहाँ क्लियर है हेड है या टेल है, और ऑब्वियस होता है कॉइन वाले केस में कि ये विद रिप्लेसमेंट है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads, no head, at least 1 head, not more than 3 heads. तो there are lot number of parts. तो हमारे पास यहाँ आपके पास सक्सेस का मतलब क्या था, हेड के बारे में बात करी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हो गया हाफ, क्यू गेटिंग द टेल, 6 कॉइन्स वर टॉस्ड. एक्सपेरिमेंट क्या बन जाएगा, NCR P पावर R इंटू Q पावर N माइनस R. रिकॉल दिस फार्मूला, मैंने ये अप्लाई किया है. यहां बाई चांस क्या हुआ, बेस सेम आ गए. हर बार ऐसा नहीं होगा, बट यहां बाई चांस बेस सेम, पावर्स आर एडेड. तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बन गया. बस अब आपसे क्या पूछा था इन फर्स्ट पार्ट, 3 heads. 3 heads का मतलब एक्सेस 3, आप R की जगह 3 लिख दीजिए एंड सिंप्लीफाई योर आंसर.
सेकेंड पार्ट, नो हेड, x इज 0, r की जगह 0 कर दिया, योर आंसर. थर्ड पार्ट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए. दिस इज सेम एज 1 माइनस नो हेड. तो 1 माइनस 60 हाफ पावर 0. ऊपर वाले आंसर को 1 में से माइनस कर रहे हैं बेसिकली. और थर्ड पार्ट में नॉट मोर देन 3 का मतलब क्या हो गया? एट मोस्ट 3 हेड्स कहा है बेसिकली. तो 3 हेड्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, और एक भी हेड नहीं आए. सो हर एक का आपको फॉर्मूला अपना लिखना पड़ेगा लाइक दिस. ये 62 हाफ पावर 6, 61 हाफ पावर 6 and 60 half power 6. If you note carefully, half power 6 common, 63, 2, 1 and 0. इनफैक्ट इनके भी अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होने चाहिए. Anyway, simplify this, you will get your required answer. कोई भी डाउट है तो प्लीज डू क्लैरिफाई. y half raised to the power 0 in second. ओके, आप चेक करो ना, फार्मूला मेरा ये बन चुका है और मैं क्या चाहता हूं, सेकंड पार्ट में क्या कहा था, नो हेड, एक भी हेड नहीं आए. मतलब कितने हेड आए? 0. 0 हेड का मतलब r की जगह 0. तो यहां आप r को जब 0, ओ सॉरी सॉरी, हाँ अच्छा अच्छा, वो r को, यस मैं आपका पॉइंट समझ गया, यहां 6 आना था. यस यस, ये हाफ की पावर 6 ही आ रहा है. या दैट वाज माय मिस्टेक, वो लिखते समय हो गया. बिल्कुल ठीक, ये होना. ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग. ऑब्जर्व दैट डाई वाला केस भी आपका सिंपल, विद रिप्लेसमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए हैं. अब ये हार्डली मैटर 6 टाइम्स हो या 10 टाइम्स भी हो जाए, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस, प्रोवाइडेड मैं बर्नौली फॉर्मूला लगा रहा हूं. और यहां या ऑड आएगा या इवन आएगा. तो ओनली 2 केसेस एज फेलियर एंड सक्सेस थे. एक्सपेरिमेंट वुड बी NCR P power R Q power N minus R. बाई चांस यहां भी बेस सेम और ये बन गया फॉर्मूला.
Now I'm sure you can answer all the parts. 5 successes ये होगा. Second, at most 5 successes का मतलब क्या होता है? X is less than or equal to 5. Don't you think it is simply saying that 1 minus p of x is equal to 6? ये भी तो सोच सकते थे, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया? x कैन बी 5, 4, 3, 2, 1. ये मैंने थर्ड पार्ट लिख लिया, मैंने यहां से ये थर्ड पार्ट पढ़ के लिखा है, ये वाला है. एट मोस्ट वाला आ गया. और ये वाला पार्ट सेकंड वाले में क्या होगा? एट लीस्ट 5 सक्सेसेस. एट लीस्ट 5 का मतलब इस केस में इजी क्या रहेगा? आप डायरेक्ट कर दो, या 5 सक्सेसेस हो सकती हैं या 6 हो सकती हैं. सो डायरेक्टली बस ये आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे एंड यू विल हैव योर आंसर. एक और क्वेश्चन इस सब टॉपिक पर. 5 cards are drawn successively with replacement. नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट है, विद रिप्लेसमेंट है, और क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल 5 cards आर स्पेड, ओनली 3 आर स्पेड, नन इज स्पेड. इसका मतलब या तो स्पेड आ सकता है या नॉन स्पेड आएगा. सक्सेस या फेलियर, ओनली 2 केसेस हैं. तो P क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड. सक्सेस हो गया. सक्सेस स्पेड कितने होते हैं? 13/52. एंड फेलियर 3/4. क्लियरली बर्नौली ट्रायल से NCR P पावर R Q पावर N माइनस R. ये मेरा यहां फॉर्मूला डराइव होकर आ गया. बस अब फर्स्ट पार्ट में क्या था? ऑल 5 आर स्पेड्स. आर की जगह 5 लिख दीजिए. सिंप्लीफाई and so on. Second part, x is equal to 3, and third part, none is spade, x is equal to 0. One can quickly answer all these parts without listing all the possible outcomes. पर रिलेट कर लीजिए ध्यान से. और मेन क्या सोचना है कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता तब सॉल्व तो हो जाएगा, बट इट विल बी वेरी कैलकुलेटिव, क्योंकि आपको बहुत सारे केसेस मैन्युअली लॉजिकली सोचने पड़ेंगे. Now, for the Bernoulli trial, we have the direct formulas for the mean, variance, and standard deviation. Mean is given by NP. Actually, Bernoulli trial is denoted by B, N, P. N is number of trials, P is the probability of success. तो Q था probability of failure,
तो मीन का डायरेक्ट फार्मूला n इंटू पी होता है, वेरियंस होता है एन पी क्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस under the root NPQ. So that's the direct formulas. We are not considering these formulas. ये जरूरत ही नहीं आपको पढ़ने वाली है, but just for a knowledge sake, I am sharing that with you. Now, lastly, two questions मैंने शायद और रखे हैं. Check out this. Both are from NCERT miscellaneous exercise. Now, this is a logical question. In a game, a man wins a rupee for a six. पर्सन को 1 रुपया मिलेगा फॉर गेटिंग अ 6 एंड लूजेस अ रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन अ फेयर डाइस इज थ्रोन. तो नॉर्मल टाइप ऑफ जैसे गेम्स में कंडीशंस होती हैं, 6 आया तो 1 रुपी मिल जाएगा, अदरवाइज ही नीड टू पे दी 1 रुपी. द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस, बट साथ में कंडीशन भी है, टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स दी 6. तो दो अलग अलग कंडीशंस पे वो चल रहा है. 3 टाइम्स तो मैं मैक्सिमम थ्रो लूंगा, बट अगर जैसे ही 6 आ गया मींस मुझे प्रॉफिट दिखा, आई विल क्विट द गेम. सो दैट्स द कंडीशन. Find the expected value of the amount he can win or lose. Expected value का मतलब E of x, और उसके लिए मुझे चाहिए probability distribution table. तो अगर EX को मैं सिलेबस में ना भी मानूं for reduced part, but probability distribution table is still in the syllabus. तो how to get that? आप यहां पर केसेस सोचिए कि क्या क्या पॉसिबल होंगे. दैट रिक्वायर अ कॉमन सेंस. उसने थ्रो करा, पर्सन ने थ्रो किया और सक्सेस आ गई. मैं एस कह देता हूं सक्सेस. सक्सेस का मतलब क्या हो गया है, गेटिंग अ 6, और एफ से हम डिनोट कर देते हैं फेलियर. सो गेटिंग अ नॉन 6 नंबर. तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, मेन वही सोचने वाली बात है. पहली बारी में 6 आ गया, ही विल क्विट द गेम, उसने कहा था. नहीं तो पहली बार फेलियर हुआ, दूसरी बार सक्सेस, ही विल क्विट. नहीं तो फर्स्ट फेलियर, सेकंड फेलियर, उसने कहा था वो 3 बार तक तो चांस लेगा ही, फिर सक्सेस, एंड ही विल क्विट द गेम. इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, एनीवन? कॉमन सेंस की बात हो रही है. यस आर्य, गुड. यस, परफेक्ट, ठीक है. या आप चेक करिए ये उपासना. हाँ, फेलियर ऑफ कोर्स 3 बार में हो सकता है. फेलियर फेलियर एंड फेलियर हो जाए. 3 बार तो उसने खेलना ही था, ठीक है. इसके बाद ही विल क्विट. तो बस अब आप सोचना शुरू कर दीजिए. अगर पहला केस है सक्सेस, सक्सेस का मतलब उसको प्रॉफिट हो गया 1 रुपी का. इसमें क्या हुआ, -1 +1, नो प्रॉफिट नो लॉस. -1 -1 +1,
इस केस में 1 रुपए का लॉस हुआ है, और इस केस में ऑफ कोर्स -3 का लॉस हो गया। तो आप जब अपनी टेबल बनाने वाले हैं, अभी इसमें भी थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। इन दिस केस x एंड px, तो x आ गया था 1 या ₹0, या लॉस ऑफ -1 एंड -3, 1 1 सक्सेस आ रही है, डायरेक्ट 1 सक्सेस, गेटिंग अ 6, 1/6। इस केस में क्या हुआ होगा, 1 फेलियर, फेलियर के लिए 5/6 है प्रोबेबिलिटी, और सक्सेस की 1/6। -1 में क्या हुआ, 2 फेलियर हो गए एंड 1 सक्सेस। -3 का मतलब ऑल 3 फेलियर। Once I have this table, now I can easily find out the expected value. In fact, answer इसका नेगेटिव में अगर आता है तो that definitely means कि इस कंडीशन के थ्रू अगर वो गेम खेलेगा तो लॉस ही होगा। And finally, this question is a logical question. Consider this as a part of your homework. Try out in your homework. Again, it's from the NCERT miscellaneous only. Little bit logical. बर्नौली ट्रायल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सोचेंगे, उसके बिना भी हो जाता है, बट वैसे सोचते हैं तो और इजी लगेगा। So I'm ending the class now. If you have any doubt, you can ask. Or you can leave. Okay. ठीक है, thank you. चलिए, take care. Thank you.